Hello guys. So today we are going to discuss another topic, that is autotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? As the name suggests, in autotrophic nutrition, an organism prepare their own food from simple inorganic material like carbon dioxide, water and mineral salts with the help of sunlight. Okay? जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो नेम हमें सजेस्ट कर रहा है ऑटो और ट्रॉफिक. ठीक है. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. एंड ट्रॉफिक मीन्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है. सो दोज ऑर्गेनिज्म, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो. ठीक है. किसकी मदद से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water and mineral salts with the help of sunlight. Sunlight, as we all know, it is the ultimate source of energy for all living creatures. So autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism prepare their own food from simple inorganic material like carbon dioxide, water and mineral salts with the help of sunlight. What were the examples of autotrophic nutrition? All green plants have autotrophic nutrition. Okay, we all know that जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम बैक्टीरिया, ठीक है, उन वो भी कैसे होती हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं. ओके, क्योंकि वो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. Let's see what is an autotroph. The term autotroph was coined by German botanist Albert Bernhard Frank in 1892. The word autotroph comes from the two Greek words. ठीक है, जो वर्ड ऑटोट्रॉफ है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ऑटो, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. ठीक है, खुद से. और ट्रॉफ, ट्रॉफ मीन्स क्या होता है? फीडिंग. ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद क्या करते हो? सेल्फ फीडिंग करते हो, उनका सेल्फ मैकेनिज्म हो फूड प्रिपरेशन का, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? दोज आर ऑटोट्रॉफ. So those organisms which can make their own food from simple inorganic material is called autotroph. Okay, means they are independent. They don't depend on another source for their food. Basically, they are independent and prepare their own food from simple inorganic material like carbon dioxide, water and mineral salts with the help of sunlight. Okay, so what are the basic types of autotrophic nutrition? There are two types of autotrophic nutrition. First one is photoautotroph. Okay, photo means light and autotroph means to feeding. Means photoautotroph are organism that can make their own food using light and carbon dioxide. Okay, so photoautotroph वो organisms होंगे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे. किसकी मदद से? लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. द वर्ड फोटोऑटोट्रॉफ is a combination of autotroph, the word for an organism that makes its own food, and photo means light. Okay, photo means what? photo मतलब क्या होता है? light. and autotroph means, autotroph वो organism होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. so combinedly अगर बात करें हम, photo autotroph means ऐसे organism जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो और किसकी मदद से? लाइट की मदद से. ठीक है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से. वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस का. लेट्स सी सेकंड वन. सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ. ओके, सो कीमो ऑटोट्रॉफ और those organisms that can make their own food using chemical as the source of energy. Okay, as the name suggests, chemoautotroph. Chemo means chemical, autotroph means those organisms who can prepare their own food. So what are the basic difference between chemoautotroph and photoautotroph? Chemoautotroph use various chemicals to prepare their own food, and photoautotroph are those organisms which use light as the source of energy. Okay, कीमोऑटोट्रॉफ में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाएंगे, और फोटोऑटोट्रॉफ में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लाइट का यूज करके अपना भोजन बनाएंगे. तो ये डिफरेंस होता है फोटोऑटोट्रॉफ और कीमोऑटोट्रॉफ में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आवर इज फोटोसिंथेसिस. ओके, द वर्ड photosynthesis is made by combination of two words. Which two words? Photo
means light and synthesis means to make. ओके, मीन्स फोटोसिंथेसिस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. फोटो जिसका मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस जिसका मतलब होता है टू मेक, किसी चीज को बनाना. सो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस by which green plants prepare their own food with the help of simple inorganic material like carbon dioxide, water, mineral salts with the help of sunlight. Okay, फोटोसिंथेसिस जो है वह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी द्वारा ग्रीन पौधे, ठीक है ना, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. किसकी मदद से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल साल्ट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ये प्रोसेस किसकी मदद से होगा? सनलाइट की मदद से. इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है इसमें हो क्या रहा है? सोलर एनर्जी को किसमें बदला जा रहा है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, जो सन से हमको सनलाइट मिल रही है एक पौधे को भोजन बनाने के लिए. पौधा क्या कर रहा है? इस सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को भोजन में कन्वर्ट कर रहा है और अपना फूड बना रहा है in the form of carbohydrate. Okay, green pigment called chlorophyll present in the plant help in the trapping of sunlight. पौधों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि मदद करता है किसमें? सनलाइट को ट्रैप करने में, ठीक है, मतलब प्लांट के ऊपर जो सन की रेज आएगी उस सन की रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा. ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के हरे पौधों में, स्पेशली इन लीव्स, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, विच हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट. मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पत्तों में देखने को मिलते हैं प्लांट्स के. सम टाइम इट मे अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स में भी हो सकता है जैसे कि स्टेम हो गई, ठीक है. बेसिकली हरे पार्ट्स में हमको देखने को मिलेगा किसी भी पौधे को, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा? मदद करेगा. अब ज्यादातर लीव्स में होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? लीव्स ऑफ द प्लांट आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. ठीक है, अगर प्लांट का किचन पूछा जाए तो वो कौन होगा? लीव्स होंगे. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का वो कहां पर हो रहा है? लीव्स में हो रहा है. ओके, कुछ जो बेसिक रॉ मटेरियल जरूरी होता है उनमें से पहला कौन सा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना, कहां पर प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में. हम जानते हैं बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें एक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. इंटर्स इन लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, प्लांट में ये इंटर करती है कहां से? स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, अपर जो लेयर होती है, उसमें टाइनी माइन्यूट पोर्स होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे. ठीक है, इन्हीं स्टोमेटा, इन्हीं छोटे छोटे पोर से कौन इंटर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? लीव्स में क्या करती है? इंटर करती है. ओके, सेकेंड जो रॉ मटेरियल हमारा होगा वो कौन सा होगा? वाटर. ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल एंड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ जाइलम. ओके, मान लो अब गाइस ये क्या है? प्लांट है. ठीक है, ये प्लांट की क्या है? रूट्स हैं. रूट्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? रूट हेयर्स. ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. ठीक है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर के साथ क्या प्रेजेंट होगा? मिनरल्स. अब इन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? रूट हेयर करेगा. रूट हेयर करके इन वाटर और मिनरल्स को कहाँ ले जाएगा? जहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है. कहां पर हो रहा है? लीव्स में हो रहा है. किसकी मदद से जाएगा? जाइलम की मदद से जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन है? सनलाइट. So plant absorbs sunlight with the help of a green pigment called chlorophyll. Okay, ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि प्लांट जो है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से. ठीक है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये क्लोरोफिल कहां पर होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, और जो ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट के उनमें होगा. ठीक है, तो जो बात हमको याद रखनी है वो क्या? कि फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू मेक, मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, सेकंड
photosynthesis is which type of chemical reaction? It is a biochemical process by which green plants prepare their own food. Third one is, in the reaction of photosynthesis, which energy is converted into which energy? Solar energy is converted into chemical energy. याद रखना इस बात को. Okay. Third one is, green pigment called chlorophyll present in the plants helps in the trapping of sunlight. ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, वो सनलाइट को क्या करेगा? ट्रैप करने का काम करेगा. ओके. अब मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब ज्यादातर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लीव्स में होता है, इसीलिए लीव्स को हम क्या कहेंगे? किचन ऑफ द प्लांट. और ये क्या है? रॉ मटेरियल, जिनको क्या होती है? प्लांट को क्या होती है? जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको पसंद आया होगा वीडियो और चीज़ें समझ में आई होंगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.